चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ओके, और फिर इसमें देखते हैं चीजों को कैसे कवर आउट करना है। ठीक है, चलो सो लेट अस स्टार्ट ऑफ विथ the types of XSS. I think you guys know what is XSS. Basically, any attacker, he tries to find some input point, and after finding some input point, the attacker tries to insert some payloads over there, some malicious payloads over there. So that is a basic thing. You guys know about it. So in types of XSS, guys, the reflected cross-site scripting is there. I think each one of you know that if you are checking for reflected XSS, the very first thing is like you give a input, check if that is input is reflecting back to you or not. Okay, is reflecting back to you or not. आप ये check करते हो, and if the input is reflecting back, okay, if input is reflecting back, we try to insert some kind of a payloads over there. This is a very basic thing. सबको याद होगा ये, हम इनपुट में कोई भी रैंडम सी इनपुट डालते थे, चेक करते थे कि वो क्या वो रिफ्लेक्ट कर रही है। अब कहां कहां रिफ्लेक्ट कर सकती है? इट कुड रिफ्लेक्ट इन योर पेज सोर्स, okay, it could reflect in some URLs. Okay, so you need to look out everything. Okay, even in page source, URL, even in the body of the page. Okay, body of the page somewhere, if it's reflecting back, we are very sure that that input point may be vulnerable to cross site scripting. Okay, तो अगर बहुत ही बेसिक आप देखो तो आई थिंक ईच वन ऑफ यू नो अबाउट इट, लाइक दिस इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अगर हम जाते हैं टेस्ट PHP पे और हम यहाँ पे चलाते हैं बेसिक सी अपनी स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट अलर्ट, ओके, वन स्क्रिप्ट, एंड वी गेट अ पॉपअप ओवर हियर। सो दैट इज अ बेसिक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। सो आई थिंक इतना सबको पता होगा। ठीक है, इतना क्लियर है ईच वन ऑफ यू? बाद बाकी लोग, सब लोग Yes, जितने, sir. यस? चलो, so this was Yes, sir. something which you guys already know. The second thing, guys, is your stored cross site scripting. Okay, इस पे हम बातें करेंगे आगे। What was the difference? The difference was that whatever input you are giving into the website, it's actually getting stored over there. Okay, so whatever input you will be entering, it would be getting stored, and anyone who visits that particular site, he will be like on his system, cross-site scripting would be triggered. That was our stored cross-site scripting. ठीक है, तो डिटेल में इस पे हम बात करते हैं। The third one is your DOM XSS. Okay, DOM based XSS. It's like document object module based XSS, जहां पे कि आपका input document object module browser का होता है, there it gets stored, and using that we will be able to perform some attacks. Like आपने देखा होगा कि जब आप पेज पे राइट क्लिक करते हो तो पेज वो ट्रांसलेट का ऑप्शन आता है, देखा है सबने? Like once we right click on the page, there is an option to translate the page. सबने देखा है ना? Yes, sir. तो वो Yes, sir. वैल्यूज कहां से फेच आउट होती हैं? वो डॉम से फेच आउट होती हैं आपकी ब्राउजर के डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल से। तो हम ये भी देखेंगे हाउ वी आर एबल टू एक्चुअली डू अ डॉम बेस्ड एक्सेसेस। ठीक है, देन वी विल बी मूविंग ऑन फॉर आवर ब्लाइंड एक्सेसेस। लाइक दीज आर द टॉपिक्स इन जनरल व्हिच वी आर गोइंग टू कवर। अपार्ट फ्रॉम इट, इनसाइड दीज देयर आर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स। Okay, so blind access is something where you are performing the attack, okay, but you will not be knowing whether that input is actually like it is actually performing or actually reflecting or not, because you will not be getting any pop-up. Okay, so I will be making sure कि आप इसके पीछे की पूरी background concept समझ सको behind the blind accesses also, and then we will be performing some blind accesses attacks as well. ठीक है, चलो तो let us start off guys with our reflected cross-site scripting, and let's do it in step by step fashion. Okay, so let us start off with our very first topic, which is reflected cross-site scripting. Okay, so inside the reflected cross-site scripting, guys, the first topic I want you guys to know is the XSS balancing part. Okay, XSS balancing, basically how to execute your JavaScript code. Okay, so I think each one of you know about it. Let me take you to a live website. Like if you go on over here, there is a site orientalbirdimages.org. Okay, so if you go over here, what is the aim of the attacker? The aim of the attacker is to find a input point. So the input point, it could be anything.
Okay, input Oh, point. ठीक है. You can also spider the page and find out some parameters, the search boxes. It could be anything, the input point. So right over here, guys, we have got an input point, which is the search field. So what if I go on and type over here, hello 11, anything, and let's see if this input is reflecting back to us or not. तो आपको दिखा कहीं कहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है? Is it reflecting? Yes or no? URL में URL में सर। यूआरएल में. चलो, तो मैंने आपको क्या बोला था, अब बेसिक्स पे ध्यान देना यार. देखो, स्टार्टिंग से मैंने आपको बोला था कि ये आपकी पेज सोर्स में भी रिफ्लेक्ट कर सकता है, यूआरएल्स में भी कर सकता है. So if it is reflecting in the URLs also, it's a case of cross-site scripting. Okay. So now once it has started reflecting in the URL, let me try to do a basic cross-site scripting by entering script, alert, XSS, script, and you will see that it is filtering your scripts. ये सबको दिखा कि you have entered script, alert, XSS script, but it has filtered your script. This is called filtering. इसको हम क्या बोलते हैं? This is called filtering. Like you inserted script, alert, for example, one script, और इसने क्या किया, साइट वाले ने, there were some filters implemented on the server side. उसने क्या किया, आपकी जो पूरी की पूरी पेलोड थी उसको वो फिल्टर कर दिया उसने. अब कैसे चेक करना है क्या फिल्टर आउट हुई थी? राइट क्लिक करो, कोडिंग में देखेंगे. एग्जैक्टली, सोर्स कोड चेक करो. सोर्स कोड हमेशा चेक करेंगे, each and every time. So now let us go on and let us check alert. कहां पे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है? Let's check for it. So you guys can see that it is reflecting over here, script, alert, XSS, script. तो अब बताओ कि why this payload, like it is not being filtered over here. यहाँ पे इसकी कोई भी पार्ट को वो हटा नहीं रहा, इरेज नहीं कर रहा. The payload is entering over here, which I have confirmed from the source code. लेकिन ये execute क्यों नहीं कर रहा? Why this is not getting executed, guys? ये बताओ. क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या पूछा? पेलोड एंटर तो हो गई, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही. क्यों नहीं हो रही? फिल्टर हो रही है. फिल्टर नहीं हो रही. देखो आप यहाँ पे एक बार चेक करो, जो भी हमने लिखा था यहाँ नहीं हो स्क्रिप्ट, रही है. हाँ स्क्रिप्ट, Sir, अलर्ट, it- एक्सेस. value attributes, but for working it should be out of the means attribute, it should be other tag, means as a Exactly. separate independent tag. एग्जैक्टली. सो इट्स की जो इनपुट है, एग्जैक्टली काजल, ऑल्सो जो भी ये वैल्यू ले रहा है ना, वो देखो डबल कोट के अंदर एज अ टेक्स्ट ट्रीट हो रहा है. ठीक है, ये देखो, ये पूरी की पूरी मैं आपको नोटपैड पे समझाता हूँ एक बार. बहुत ही बेसिक है. आई थिंक आईएससीपी में भी ये चीजें कवर हुई होंगी कहीं ना कहीं. देखो, this is something which is getting reflected over here in this fashion, but we have entered over here script, alert, XSS. This was our input. So you can see like this started over here, this closed over here, okay, and this input tag, it has one attribute type, उसकी वैल्यू थी text, एक दूसरी एट्रीब्यूट थी id, उसका वैल्यू का नाम था कीवर्ड नेम और उसका वैल्यू था कीवर्ड, क्लास का वैल्यू था इनपुट फील्ड, और एक वैल्यू नाम की एट्रीब्यूट थी, एंड द वैल्यू नेम्ड एट्रीब्यूट्स वैल्यू वाज दिस वन, एंड इट इज कमिंग इनसाइड अ डबल कोट, which means that this is treated as a text. So what if we just closed it? मान लो कि अगर हमने इसको यहीं पे क्लोज आउट कर दिया, तो ये स्क्रिप्ट, इतनी जो कमांड होगी हमारी, वो बाहर नहीं आ जाएगी इससे, इस पूरी की पूरी इनपुट से, और ये नाउ इट वुड बी ट्रीटेड एज अ जावास्क्रिप्ट कोड. ठीक है, इसको कहते हैं हम फिल्टरिंग को बाईपास करना, बैलेंस करना एक्सेसेस को. तो अब मेरी पेलोड ये हो गई पूरी की पूरी, double quote, closing, script, alert, XSS, script. Let us copy it out, go back again to the browser, and this time let's try to execute this one. Script, double quote, closing bracket, script, alert, XSS, and let's see. And yes, we are able to get a pop-up this time. The very first point is clear, guys. XSS balancing, how to execute JavaScript. Yes or तो no? मतलब आपने वो कॉपी किया और आपने कॉपी करके यहाँ लिख दिया, आपने कोड में कुछ चेंज नहीं किया. नहीं, मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, मैंने अभी देखो सिंपल सा, देखो पहला स्टेप क्या होता है कि कुछ भी आप यहाँ पे इनपुट डाल दो, हेलो 1, हेलो 2, कुछ भी कर लो, सोर्स कोड चेक. ठीक है, सोर्स कोड में आ गए और हम देखते हैं कि ये सोर्स कोड में कहाँ पे आया है. ठीक है, हेलो 1 देखते हैं कहाँ है. तो देखो ये डबल कोड के अंदर है, तो हमें इसको डबल कोड के बाहर निकालना है.
ठीक है, डबल कोट और क्लोजिंग के बाहर निकालना है। तो अगर हम इसको यहीं पे बंद कर देंगे, डबल कोट और क्लोजिंग ब्रैकेट, और उसके बाद चीजों को करेंगे, तो ऑब्वियसली ये बाहर आएगा ना हमारा कोड। जैसे देखो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे ऐसा था, दिस वाज द कंडीशन, ठीक है, डबल कोट और क्लोजिंग ब्रैकेट, दिस वाज द अर्लियर कंडीशन। और ये जो है, ये डबल कोट में आने की वजह से ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। तो हमने क्या किया, इसकी जगह पे हमने इसको पहले ही से बंद कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको पहले से बंद किया तो क्या हुआ, ये यहाँ पे बंद हो गया। इसका ये मतलब कि ये जो वैल्यू थी ये यहीं पे क्लोज हो गई, और ये जो इनपुट टैग स्टार्ट हुआ था वो यहीं पे आके क्लोज हो गया, और मेरा जो ये पेलोड है ये अब मतलब इंडिपेंडेंट बाहर है, आ गया। बाहर आ गया। ठीक है, और अब ये एग्जीक्यूट होने लगा। क्लियर ईच और वन सर ऑफ। अगर यूआरएल में ना आता तो, अगर ये यूआरएल की जगह पेज पे रिफ्लेक्ट करता, कहीं पे भी करता, कहीं पर भी करना चाहिए। ठीक है, तब भी कहीं कोड पर, चेक कर। हाँ तब भी कोड चेक करते, कहीं पे भी करता तो ठीक है, कोड तो हम हमेशा चेक करेंगे। ठीक है, चलो गाइस, क्लियर। काजल, दीपक, दीपक यू आर लेट। सबसे पहले आपने ही रिप्लाई किया था सुबह सुबह, फिर भी आप लेट हो आज। हाँ सर, मैं ना बाहर हूँ, मैं मोबाइल में देख रहा हूँ क्लास। अच्छा, मोबाइल में देख रहे हो क्लास, चलो कोई बात हाँ नहीं। ये जी। टाइम टाइम आप ही ने बोला था, वैसे सुबह में होगा तो बेटर है। हाँ सर, चलो वो ठीक है। अचानक से काम आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट गाइस, व्हिच वाज एक्सेस बैलेंसिंग, हाउ टू एग्जीक्यूट योर जावास्क्रिप्ट कोड। Okay, so I showed you on a site, Oriental Bird Images. Let me take you to a different website and let me show you over there as well. ठीक है, just give me a second. Okay guys, I'm getting a call, just एक मिनट रुकना सब लोग। गाइस गिव मी 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, एक बहुत ही इमरजेंसी काम है, आप लोग वेट करना, ठीक है, बस 5 मिनट। Meanwhile, Mr. Kunal, if you want to have some words with the students.
Okay guys, sorry for the interruption. सब लोग हैं? Yes. Yes, okay. So I showed you on Oriental bird images. I was about to show you on a different site as well. I think each one of you know about a website called TripAdvisor. सब जानते हो इसके बारे में? It's also on Bugcrowd. Like it has a program on Bugcrowd as well. So what we will be doing, so any attacker, he goes onto a website and he first looks out for the input fields. तो हम भी क्या करेंगे, सबसे पहले input fields की खोज करेंगे. So this website is not properly loading up. Try to open it in Chrome browser. tripadvisor.in. सर वैसे जो स्पाइडर करके जो पैरामीटर ढूंढते हैं, इसमें तो हमें स्पाइडर करने का फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि हमें तो कोड देखना है. नहीं, स्पाइडर करके भी तो हम रिपीटर में देख सकते हैं ना कोड. जैसे आप जाओगे यहाँ पे, मान लो स्पाइडर करके कोई आपको मिली, ठीक है, मैं आता हूँ उस पे, वो भी एक टॉपिक है आगे चल के, आप वेट करो. Okay. ठीक है, टॉपिक वाइज टॉपिक चलते हैं. देखो यहाँ पे एक इनपुट फील्ड सबको दिखी, तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट यहाँ पे कोई भी इनपुट डालो hello one और चेक करो कि वेदर दिस hello one इज रिफ्लेक्टिंग बैक टू यू और नॉट इन एनी वेज, बी इट URL, बी इट योर सोर्स कोड और द पेज बॉडी, कहीं पर भी क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहा है. और अगर हाँ, if it is reflecting back, then we can proceed to our next steps. Okay, so let this page load completely. Okay, and let's see. Okay, and you can see over here, it's actually reflecting back और on multiple places, URL में भी, body में भी, हर जगह ये reflect कर रही है. तो what if we can try over here our simple payload? Okay, suppose if I try over here, double quote closing bracket, and this time if I try this code, okay, ये code बहुत ही important है. If normal codes doesn't work, just try this one. If basic code script alert XSS doesn't work, try this one. img src is equal to x on error, okay, is equal to confirm 1. Okay, confirm 1. So what's actually happening over there in this source code, guys? Isko samjho, sorry, this payload. You have given one image, you have given some source, and in source you have pasted X, which means that there is no image whose source is X. Invalid origin you have given over here. So there would be an error. So we have written on error is equal to confirm 1. मतलब आपने एक इमेज लोड करी जिसका कि आपने यूआरएल इनवैलिड दे दिया, तो उस इमेज को लोड होने में एरर आएगी, और जैसे ही वो एरर आएगी तो आपने यहाँ पे कर दिया confirm 1 ताकि एक पॉपअप वहां पर आ जाए. Okay, so let us try to do this. Let us try to go over here. Okay, and let us try to execute this payload over there. यहाँ पे डालते हैं और उसके आगे हमने लगा दिया डबल कोट क्लोजिंग, ताकि वो इंटरनली कहीं मान लो डबल कोट के अंदर आ रहा हो, जो पिछला केस था वो भी बाईपास हो जाए. नाउ लेट अस ट्राई टू क्लिक ऑन एंटर. डिड यू नोटिस समथिंग? देयर वाज अ पॉपअप सेइंग 1. यस, सबको दिखा? क्रोम ब्राउजर है इसलिए ऐसा पॉपअप दिख रहा है, फायरफॉक्स होता तो Yes, बीच में sir. दिखता आपको. ठीक है, so this was your first topic, guys, which was actually balancing your cross-site scripting, balancing and how to execute your JavaScript code. So there are two targets for you to practice over here. The first one is your Oriental bird images.org. Okay, this is your target number 1, and the target number 2 is tripadvisor.in. So make sure, guys, whatever website I show you in the class, आप उसको एक बार practice खुद पे जरूर करो. Okay, and also some websites I will be giving you as homeworks, तो आपको उस पे भी करके लाना होगा. चलो, the second topic, guys, in this reflected one is XSS. Okay, when script tag is blocked. Script tag is blocked. So for example, there are some websites it's blocked, or if suppose if it is stripped. Okay, let me show you practically. You will be understanding what I'm talking about. If I take you to a website, bata.in. Okay, Bata's website. Okay, so it is www.bata.in, buy shoes online for men, women and kids. Okay, let's open this site. Okay, so now we have got, like, this is our web page. Either I can spider it out, but right now I'm just looking out some parameters, some input boxes. So you can see we have an input box over here, the search box.
Okay, so what if we go on and type over here hello 1? Let's see. Hello 1. And let's check if it is reflecting back to us or not. So is it reflecting back, guys? हाँ या ना? यस Yes? सबको दिख रहा है ना कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है? यस सर, दो जगह बॉडी और यूआरएल में। बॉडी और यूआरएल दो जगह। यूआरएल ठीक है, चलो। सो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर जाके हमारी बेसिक सी स्क्रिप्ट टैग चला सकते हैं। ठीक है, लाइक बेसिक जो हम भी चलाते हैं हमारी स्क्रिप्ट अलर्ट एक्सेस, वो चला के देखते हैं। स्क्रिप्ट ओके अलर्ट 1 स्क्रिप्ट ओके, और देखते हैं अब क्या होता है। लेट्स क्लिक ऑन एंटर, लेट्स सी। ओके, सो कुछ दिखा सबको? अगर मैं आपको दिखाऊं सोर्स कोड इसकी, ओके तो अब देखो यहाँ पे 1 कहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, या फिर अब यूआरएल में देख लो सीधा सीधा, ये दिखा सबको यहाँ पे यूआरएल में जो भी हमने डाला था स्क्रिप्ट अलर्ट 1 स्क्रिप्ट, उसमें से इसने कितनी चीजों को हटा दिया? स्क्रिप्ट को भी हटा दिया, अलर्ट को भी हटा दिया। यस यस एग्जैक्टली, यहाँ देखो प्रिंट भी हो रहा है, तो क्या प्रिंट हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ 1 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि फिल्टर कर रहा है। पहला फिल्टरिंग क्या कर रहा है? ये फर्स्ट फिल्टरिंग ये जो कर रहा है वो कर रहा है स्क्रिप्ट टैग का। ओके, एंड सेकंड फिल्टरिंग जो ये कर रहा है, सेकंड फिल्टरिंग जो ये कर रहा है वो किसका कर रहा है? वो अलर्ट का कर रहा है। सो ट्राई टू थिंक इट लॉजिकली। ओके, सो गाइज टुडेज मीटिंग इज लाइक अ लिमिटेड टाइम पीरियड, तो हमें दोबारा रिकनेक्ट करना पड़ेगा 10 मिनट के बाद। ठीक है, तो चलो। The first filtering is of script tag, the second filtering is of alert over here. So what we can do over here, guys, let us now go on and let us try to understand this thing first. Background concept. Okay, in this case, see, if script tag is blocked, then I've given you one alternative. Like you can try to perform this one and check if it is working or not. आप ये try कर सकते हो, क्योंकि इसमें script tag नहीं है। ये दिख रहा है, इसमें एक भी स्क्रिप्ट टैग नहीं है। इसका मतलब that this payload can be used to perform cross site scripting in this specific case. ओके, तो लेकिन अब इसमें भी आप देखो एक चीज कि मान लो यहाँ पे हमने ये लिखा कि अलर्ट 1, ठीक है, तो ये जो अलर्ट है ये वाला फिल्टर है यहाँ पे। तो जावा स्क्रिप्ट गाइस, जावा स्क्रिप्ट गिव्स यू 3 options over here, 3 options of boxes. The first one is your alert box. Okay, like you can write something like this. Okay, this payload img src on error is equal to alert 1. Okay, alert box. This is the payload which you can try. The second payload, the second option which JavaScript gives you is like confirm box. Okay, so the payload would now become this one. img src on error is equal to confirm 1, and the third thing would be a prompt box. Okay, so if confirm is also blocked, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे जाकर इस चीज को लिख सकते हो, this is your prompt, prompt। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोगों को? लाइक दीज आर द 3 कंडीशंस व्हिच यू कैन ट्राई। इट वाज नॉट जस्ट अलर्ट 1। अगर अलर्ट फिल्टर्ड है तो आप ट्राई कर सकते हो confirm 1। ओके, मैं आपको दिखाता हूं एक बार। चलो, अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है, लेट अस कॉपी इट आउट। ऐसे तो स्क्रिप्ट वाले पे भी हम चेंज कर सकते हैं कि हम उसमें स्क्रिप्ट चेंज करके कुछ और डाल दें। नहीं, देखो स्क्रिप्ट चेंज करके कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन जो ये स्क्रिप्ट बेसिक होता है ना हमारा, वो जावा स्क्रिप्ट को आइडेंटिफाई करता है। तो हम क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं कि क्या कोई जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो सकती है वहां पे। अगर नहीं, उसके बाद तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। IMG ये बस आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद तो आप पॉलीग्लॉट्स यूज कर सकते हो। मैं आता हूँ उस पे, पॉलीग्लॉट्स पे। चलो, एक बार इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसलिए मैं पॉइंट वाइज जा रहा हूँ गाइज। ठीक है, पॉइंट वाइज आप लोग भी ऐसे ही पॉइंट वाइज नोट्स बना लेना। चलो, एक बार मैं आते हैं इस पे और लिखते हैं ये ऑन एरर इज इक्वल टू अलर्ट 1, और देखते हैं कि क्या कोई पॉपअप आ रही है। लेट्स सी, लेट द पेज लोड कंप्लीटली। ये देखो यहाँ पे तो ये एक इमेज लोड नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमने इसका सोर्स गलत डाला है। लेट्स सी, कुछ दिखा सबको? हमारी इमेज तो यहाँ पर आ गई जिसका कि सोर्स x था, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हम इसकी प्रीवियस केस में देख चुके हैं कि ये अलर्ट टैग को भी ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, तो एक बार क्या हम कंफर्म या फिर प्रॉम्प्ट चेक कर सकते हैं? यहाँ पे करके देखते हैं।
एक बार इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, img src is equal to on error confirm 1. Let's go back, okay, and try to enter this, and let's see now. Let's see what happens. Yes, you are getting a pop-up over here. सबको समझ आया सेकंड केस? स्क्रिप्ट टैग ब्लॉक सर ये हो, तब करना है, ये तब करना है जब हमें उसमें सोर्स कोड में भी कुछ ना मिले, जैसे हमने वैल्यू वाले भी किया था। हाँ ये आपको तब करना है जब आपको सोर्स कोड में दिखा, देखो जैसे ही हमने यहाँ पे hello 1 किया ना, बेसिक सा कोड डाला था, तो हमें वहां पे क्या दिखा, देखो हम आइडेंटिफाई कैसे किए कि हमें ये करना है। देखो जैसे ही हमने यहाँ पे किया स्क्रिप्ट अलर्ट 1 स्क्रिप्ट, तो देखो क्या हुआ था और क्या होने के की वजह से हम यहाँ पर आए थे, वो देखना, समझ में आ जाएगा। हमने डाला स्क्रिप्ट अलर्ट 1 और यहाँ पे आया क्या, सिर्फ और सिर्फ 1, मतलब ये स्क्रिप्ट टैग को भी खा गया, अलर्ट को भी खा गया। ठीक है, तो हम ना स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं ना अलर्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब IMG वाले पे आ गए, और IMG वाले में भी हमारे पास 3 ऑप्शंस थे, उस 3 ऑप्शंस में भी हम अलर्ट नहीं यूज कर पाएंगे, कंफर्म और प्रॉम्प्ट से हमें काम चलाना पड़ेगा। आपने देखा कि ये वाला काम कर गया। सर अगर तीनों ना करते तो? तीनों नहीं करता तो फिर पॉलीग्लॉट्स पे आते, दूसरे केसेस पे आते। ठीक है, मैं आता हूँ उस पे भी आता हूँ, बहुत सारे केसेस अभी, आप वेट तो करो। ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आपकी 3-4 क्लास चलने वाली है अभी। चलो ठीक है, वापस आते हैं इस पे।